This is IMT News. شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اردو زبان سے محبت، لگن اور خصوصی دلچسپی اردو زبان کو بین الاقوامی طور پر فروغ دینے کے لیے پاکستان کی قومی و سیاسی تاریخ میں اہم کارنامہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی اردو ویب سائٹ کا قیام شہید بی بی کا اہم تاریخی کارنامہ ہے۔ شہید بی بی نے پی اردو ویب سائٹ کا قیام 2005 کو لندن میں رکھا، جس کی پہلی سالگرہ اگست 2006 کو امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں منعقد ہوئی۔ پروگرام کے میزبان پی ہیوسٹن کے صدر سید ریاض حسین تھے۔ شہید بی بی کی ہدایت پر اردو ویب سائٹ کی پہلی سالگرہ کی تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل مرحوم جہانگیر بدر صاحب تھے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اردو ویب سائٹ کے چیف آرگنائزر پی یو کے موجودہ ایڈیشنل جنرل سیکریٹری جناب عمر میمن صاحب نے شہید بی بی کا خصوصی پیغام پڑھ کر سنایا۔ اردو ویب سائٹ کے بانی جناب سیف اللہ سیفی صاحب نے اردو ویب سائٹ کے قیام پر شہید بی بی کو خراج تحسین پیش کیا۔ مقررین نے کہا کہ شہید بی بی نے اردو زبان کو فروغ دینے اور بین الاقوامی طور پر اجاگر کرنے کے لیے جدید انٹرنیشنل ٹیکنالوجی کے ذریعے دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق اردو ویب سائٹ قائم کی، تاکہ پاکستان کے عوام اپنے قومی زبان اردو کے ذریعے بآسانی دنیا بھر سے جدید کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے مستفید ہو سکیں۔ اس تقریب میں یورپ، امریکہ اور مختلف ممالک میں مقیم پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین کے علاوہ بڑی تعداد میں سینئر جرنلسٹ اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں نے شرکت کی، اور اردو ویب سائٹ کی پہلی سالگرہ پر مقررین اور شرکاء نے شہید بی بی کی اردو زبان سے ذاتی دلچسپی اور اس کی فروغ ترقی کے لیے کیے جانے والے تاریخی اقدامات پر ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور ان کی دور اندیش دانشورانہ اقدام پر کہا کہ اردو ویب سائٹ قائم کرنا ملک و قوم اور نوجوان نسل کی مستقبل میں روزگار کے لیے عظیم تاریخی کارنامہ ہے، کیونکہ پوری دنیا میں جدید سائنسی ٹیکنالوجی دور میں داخل ہو چکی ہے۔ وطن عزیز پاکستان اور اس کی قومی زبان اردو بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ اس پروگرام میں دیگر مہمان گرامی میں USA کے صدر جناب شفقت تنویر صاحب، پی کینیڈا کے صدر اور اردو ویب سائٹ کے کوآرڈینیٹر دانیال ابراہیم، پاکستان پیپلز پارٹی بیلجیم کے سینئر رہنما اور اردو ویب سائٹ کے صدر ملک اجمل، اور جرمنی کے صدر اور اردو ویب سائٹ کے جنرل سیکریٹری جناب زاہد عباس شامل تھے۔ خواتین و حضرات، آج کی اس خوبصورت تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی ہیوسٹن اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اردو ویب سائٹ کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ جو آج کی کہکشاں میں آج جتنے ستارے یہاں پہ موجود ہیں، وہ ہمارے ایک بڑے اہم مہمان کا استقبال کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور ان کو سننے کے لیے۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی اور میں آج انہی فاتح میں سے ایک فاتح کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں، جناب جہانگیر بدر۔ آپ کی پرزور تعلیم خواتین و حضرات، یہ آئیجیا محترمہ بے نظیر بھٹو کا تھا، اور انہوں نے اپنے ٹرسٹڈ، اپنے ایک سپاہی سیف اللہ سیفی کو کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی اردو ویب سائٹ بنے، اور یہ بی بی کا کہنا تھا اور سپاہیوں کا عمل۔ کچھ ہی عرصے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اردو ویب سائٹ بن گئی، اور پچھلے سال 22 اگست 2006 کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کا باقاعدہ نوٹنگہم لندن میں افتتاح کیا۔ یہ ویب سائٹ جون کے مہینے میں اس کا آغاز ہو گیا، کیونکہ یہ ویب سائٹ کارکنان کی طرف سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے لیے تحفہ بھی تھا۔ اب میں اسی سپاہی پروجیکٹ انچارج پاکستان پیپلز پارٹی اردو ویب جناب سیف اللہ سیفی، جو اس تقریب میں خصوصی طور پر ہالینڈ سے تشریف لائے ہیں، جناب سیف اللہ سیفی، آپ کی تعلیم کی گونج میں
अंदाज में तब्दील इसलिए ज़रूरी होती है कि कुछ मेहमान आपके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में उनका एक बड़ा अहम मुकाम है, और सबसे बढ़कर वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ट्रस्टेड साथी हैं। मैं उनको दावत दूंगा आपकी तालियों में जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी USA, चेयरमैन पाकिस्तान लीग ऑफ अमेरिका जनाब शफकत तनवीर। हज़रात, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आदमी कहता है यार ये मैं क्यों ना हो जाऊं। ये बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट होता है किसी के लिए कि यार ये जो शख्स है ये इतना खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक है, इतना डैशिंग है कि काश मैं ये हो जाऊं। मैं एक ऐसे ही शख्स को दावत दूंगा जिसकी इंतजामी सलाहियतें हर सतह पर रिकग्नाइज की गई। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शादी के स्टेज की बारी आई तो मोहतरमा की ख्वाहिश थी कि ये प्रोजेक्ट ये साहब संभालें। कराची में 1986 में जब मोहतरमा का इस्तकबाल होना था तो कहा गया, मोहतरमा की ख्वाहिश थी कि यही साहब जो हैं इनको इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया जाए, क्योंकि इनसे बेहतर इंतजामी सलाहियतें किसी के पास नहीं। मैंने इन साहब को 2-3 दफ़ा इंग्लैंड में देखा, और जब मैं इनको देखता हूँ तो मैं बुनियादी तौर पर डिसऑर्गेनाइज आता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे खामी में डिसऑर्गेनाइज हूँ, लेकिन जब मैं इन साहब को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार काश मैं उमर मेमन हो जाऊँ। तो मैं आप सब लोगों की तालियों की दावत दूंगा जनाब उमर मेमन, जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उर्दू वेब के। आप चेयरमैन हैं लेबर ब्यूरो यूनाइटेड किंगडम में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इंतजामी मामलात की कोई बात होती है तो मोहतरमा इन्हीं की सिलेक्शन करती हैं। ये खुसूसी तौर पर इंग्लैंड से आज की तकरीब के लिए तशरीफ लाए हैं जनाब उमर मेमन। आप मैं दावत दूंगा कि जनाब सलीम सैयद साहब को कि वो एक मेहमान को रिकॉग्नाइज करें और उसके बाद शुक्रिया। ये जो आप खूबसूरत अंदाज़ बयान सुन रहे हैं, मैं बता चलूँ ये दानियाल इब्राहिम साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी PPP कनाडा, और जो पीपल्स पार्टी की उर्दू वेब है इसके चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं। Now I would like to invite our American friend here, and I would like to say the only thing that his chairman, Gary Glenn, Republican Party, for the country. Please come over. लेकिन हम इनको मजबूर कर रहे हैं कि यहाँ के जो PPP के जनरल सेक्रेटरी जनाब रियाज हुसैन साहब तशरीफ लाएं। ना मैं तकरीर तो करता ही हूँ, लेकिन आज बदर साहब जो खसूसी तौर पर यहाँ आए तो मैंने कहा मैं कुछ 2 अल्फाज जरूर बोलूँगा। जहांगीर बदर साहब का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा इसलिए करूँगा कि उन्होंने जब मैंने एक दफ़ा फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं जियादा हूँ, और हकीकत में ये जियादा ये महल की सियासत नहीं करते हैं, ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करते हैं, ये भी वर्कर टाइप के रहे, माशाल्लाह तरक्की करते हुए वफाकी वजीर भी बने, और अल्लाह ने उनको मुकाम दिया कि बीवी के इतने ख़ास उन पर वो है कि आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे साथ ये 2-3 दिन बड़ी मेहनत की। वो ताहिर मामा के हर वक्त मेरे साथ सारा दिन और रात करते हैं। साहब का भी बहुत शुक्रिया। तो मैं मेहमान के बीच में इसलिए नहीं आऊँगा कि मैं चाहता हूँ कि हम जहांगीर बदर साहब को सुने कि मौजूदा
पाकिस्तान की सियासी सूरत और इस टेक्नोलॉजी पे मैं चाहता हूँ कि दोनों मौजूद में हम उनको सुने तो बेहतर होगा। और मैं तमाम मेहमान का, तमाम अफराद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी जनाब जहांगीर बदर साहब, अशरफ अब्बासी साहब, जनाब गुलाम बगल साहब, मेरे अजीज़ दोस्तों, स्पेशली रियाज हुसैन हमारे जनरल सेक्रेटरी ह्यूस्टन के, मैं सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने ये उर्दू की वेबसाइट एक साल पहले का एहसास किया कि हमारी उर्दू वेबसाइट होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंग्लिश की वेबसाइट आज से 10-15 साल पहले माज़े वजूद में आ चुकी थी और ये उर्दू की वेबसाइट बड़ी ज़रूरी थी। हमारे जो वर्कर्स थे वो जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए पाकिस्तान में ये वेबसाइट एक तानिक का तानिक किसी को मिलता है, ये वेबसाइट उसके लिए ये वो चीज़ थी जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। और उस पे मैं जनाब सैफुल्लाह सैफी साहब का बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने इसको रीड किया, मोहतरमा से डायरेक्शन दी और ये आज जो वेबसाइट है अगर आप जाएं तो उसमें हम जैसे मैंने कहा रियाज साहब थोड़े से पहले अपना वो हिस्सा कर चुके, तो रियाज साहब की ख्वाहिश भी थी और उनकी हदायत पर मैं यूके से आए हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब उमर मेमन से दरख्वास्त करूँगा कि वो मोहतरमा का पैगाम पढ़कर सुनाएं जो कि उर्दू जुबान में है। कहीं आपको पैगाम से पूरे कर दिया जनाब उमर मेमन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साहब आपके परमिशन से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पैगाम। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उर्दू वेबसाइट की पहली सालगिरह पर इस वेबसाइट के निगरानी आला सैफुल्लाह सैफी और उसके मरकज़ी और ज़ेरी साखों के साथ वाबस्ता तमाम सहाफ़ियों और कारकुनों को अपनी और पार्टी की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुनिया भर में शायद वाहिद सियासी पार्टी है जिसने अपनी उर्दू वेबसाइट का इजरा किया। इस बात का दलील है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आवाम की पार्टी है ने हमेशा आवाम के साथ राब्ते को अव्वलीन अहमियत दी। यही वजह है कि पार्टी अब आवाम तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए जदीद ज़राए का इस्तेमाल कर रही है ताकि न सिर्फ पार्टी की पॉलिसियों आवाम के लिए पार्टी की खिदमत से आवाम को बेहतर तौर पर आगाही दी जा सके, बल्कि आवाम के साथ मुसलसल राब्ता भी रहे। कुछ अर्से पहले तक आवाम तक रसाई हासिल करने का ज़रिया सिर्फ अखबारात, रेडियो, अवामी इज्तिमाअ होते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस ज़मन में अहम किरदार अदा कर रहा है। इंटरनेट, SMS और ईमेल का इस्तेमाल रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंग्रेज़ी ज़बान में वेबसाइट तकरीबन 10 सालों से मौजूद है, लेकिन उर्दू ज़बान में वेबसाइट न होने की वजह से एक बड़ा अरसे तक महसूस किया जा रहा है। ये अमल बाइस इत्मीनान है कि इस खुला को पूर्ण करने के लिए सैफुल्लाह सैफी और उनके साथी गुज़श्ता 1 साल से मौसर और काबिल तहसील कोशिशें कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को तेज़ रफ्तार तरक्की ने मालूमात उन दूर दराज मकाम तक भी पहुँचा दी है जहाँ अखबारात आम तौर पर नहीं पहुँच पाते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है, देहातों में रहने वालों की जमात है, इसलिए ये अमल इंतहाई ज़रूरी है कि वो अपना पैगाम अपने अरकान, हिमायतियों और आवाम तक पहुँचाने के लिए तमाम ज़राए रोज़गार लाए। और इस शहर में वेबसाइट लोगों तक रसाई का एक इंतहाई अहम और मौसर ज़रिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उर्दू वेबसाइट पर पार्टी की तारीख, पार्टी के कारनामे, अवामी खिदमत, मुख्तलिफ उमूर पर पार्टी पॉलिसियाँ और मौक़िफ़ और मौजूदा सियासी, माशी और समाजी उमूर पर पार्टी का नुक़्ता नज़र
आवाम के लिए इंतहाई सूखमंद साबित हो सकता है, जिससे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अवतार के मुताबिक एक जमहूरी लाइफ और मजहद पाकिस्तान क़याम अमल में लाने के लिए राय हमवार करने में मदद मिल सकती है। मैं एक बार फिर उस वेबसाइट की पहली सालगिरह के मौके पर इससे मुंसलिक तमाम कारकुनों को मुबारकबाद पेश करती हूँ और इस वेबसाइट की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करती हूँ। मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि इस वेबसाइट की तशहीर ज़्यादा से ज़्यादा की जाए ताकि आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपकी बहन बेनज़ीर भुट्टो। On behalf of Pakistan People's Party Urdu website, मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मौका पर इतना खूबसूरत पैगाम भेजा। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उर्दू वेबसाइट इस एतबार से बड़ी इंटरनेशनल है कि जब ये सैफुल्लाह सैफी साहब ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया तो उन्होंने एक टीम इकट्ठी की। वो ये भी कर सकते थे कि उस टीम को एक जगह से लिया जाता। उन्होंने मतलब मैं कनाडा से था, उमर मेमन यूके से, इस तरह कराची से राशिद रब्बानी, जो कि जब PSF में था, यूथ में था और उसने जेलें खाती और आज हमारे दरमियान है, वो है सैफुल्लाह सैफी। तो आज के प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी उर्दू के प्रोजेक्ट इंचार्ज जनाब सैफुल्लाह सैफी से उम्मीदवार दूंगा कि वो तशरीफ लाएँ और प्रेजेंटेशन में मौजूद ख़वातीन और हज़रात और मौजूद मेहमान गिरामी जो स्टेज में तशरीफ़ रखते हैं, आप सबको सैफुल्लाह सैफी की जानिब से सलाम कबूल हो। जब दानिया साहब ने मुझे यहाँ पे बुलाया, इससे पहले मेरे जहन में कई बातें घूम रही थी माजी की, और मैं सोच रहा था कि क्यों ना दानिया साहब को हटा के मैं खुद जो है वो निज़ामत के फ़राइज़ शुरू करूँ। उसकी वजह ये है कि बेसिकली जो है मैं भी एक फ़नकार हूँ और मेरा जो प्रोफेशनल कैरियर था वो एज एन आर्टिस्ट मैंने शुरू किया था और वन मैन शो और कंपेयरिंग वो मेरे पैदाइशी मेरे अंदर थी जो मैं उसको चला रहा था। लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी कहना या अल्लाह ताला का ऊपर से कोई एहसान या करम था जो मुझे मज़ीद कुछ सिखाना चाहता था। तो मेरे शो बिज़नेस का जो दौर था या कैरियर था जो जिसको मैं आगे ले जाना चाहता था वो सियासत में चला गया और उसके बाद जेल जिलावती तकलीफ़ें ये जो कुछ भी था जो और लोगों के साथ हुआ मेरे साथ भी हुआ, लेकिन वो अंदर का जो फनकार है वो मुझे बार बार छेड़ता है। और जब दानिया साहब चूँकि ये भी PTV में माशाल्लाह एंकर रह चुके हैं और जिस तरह से ये कर रहे हैं तो मुझे अपना वो पुराना दौर याद आ जाता है, हालांकि मुझसे बहुत थोड़े से छोटे हैं शायद। मैं ज़रा चाहता हूँ कि माहौल जो है वो ज़्यादा संजीदा ना। और बात हो रही है यहाँ पे उर्दू वेबसाइट, आप लोग भी सोच रहे होंगे अमेरिका में जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है हमारे बच्चे जो हैं वो उर्दू में गुफ्तगू कर रहे हैं, इंग्लिश में जो है इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा है और आगे जो है वो जो हमारे मतलब हमारी एज के लोग या हमसे पुराने लोग हैं वो उर्दू का अभी भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं जितना हो सकता है। लेकिन जो नई जनरेशन है उनको मेरा ख्याल है कि जैसे यूरोप के दीगर ममालिक में जो है वो अंग्रेज़ी का या अपनी माँ की जो लोकल ज़बान है उनका इस्तेमाल है, तो उर्दू का बड़ा एक मसला है। बहरहाल तफसील जो है वो आपको दानिया साहब भी बता चुके हैं। मैं बहरहाल अपनी वो जो एक वो पुरानी याद है वो ज़रूर आपको छोटी सी मुख्तसर सी वो अर्ज़ करूँगा कि बात यहाँ उर्दू की हो रही थी, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कराची में एक कम्युनिटी माशाल्लाह बड़ी मशहूर है मेमन बरादरी, उनके हवाले से मैं एक वाक़या सुनाऊंगा। दो दोस्त थे और वो दोस्त जो है वो आपस में, यहाँ तो उर्दू की बात हुई, वो अंग्रेजी में झगड़ा हुआ है। तो एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कहता है एक अपार तेरे को मालूम है मैं अंग्रेजी में बहुत फर्स्ट क्लास हो गया। मैंने बोला कैसे अंग्रेजी में फर्स्ट क्लास? बोला तेरे को पता है मैंने ऐसी ठीक ठाक अंग्रेजी सीखी है, अभी मेरे से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बोला अच्छा मैं तेरा भी टेस्ट लेता हूँ, अगर किसी को अंग्रेजी में बुलाना हो तो क्या बोलेंगे? सिंपल, मैं इसको बोलूँगा काम ही है। उसने बोला जब उसको वापस भेजना तो क्या बोलेंगे? मैं उस तरफ जाके बोलूँगा काम ही है। वो अंदर का फनकार रह नहीं पा रहा था, मैंने चलो थोड़ा सा माहौल को अब
تھوڑا سا سنجیدگی کی طرف آتے ہیں کہ دانیال صاحب بہت کچھ فرما چکے ہیں یہاں پر. یہ ایک میرے لیے اعزاز کی بات تھی, فخر کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے یہ اعزاز بخشا. ہماری قائد نے مجھ پر ٹرسٹ کیا, اعتماد کیا اور انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا ہر کام کر سکتا ہوں تو یہ اس کی بس کی بات نہیں. یہ ایک ٹیم ورک ہے. ہر ٹیم میں جیسے کرکٹ یا فٹ بال یا اور بھی دیگر گیمز ہیں جو ٹیم میں بیس کرتے ہیں, ان میں تمام کھلاڑیوں کا ایک اپنا اپنا رول ہوتا ہے. اور جب میں یہ پروجیکٹ میں نے شروع کیا تو میں بالکل اکیلا تھا, اور آہستہ آہستہ اس میں لوگ شامل ہوتے گئے اور مجھے سپورٹ کرتے گئے اور تعاون بڑھتا گیا. اور اس میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ساتھ ہمارے سیکرٹری جنرل, ہمارے بڑے بھائی سینئر, ہمارے استاد بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, ہمارے رہنما بھی. انہوں نے شروع دن سے جب سے ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہماری رہنمائی کرتے رہے, ہمیں فیڈ بیک کرتے رہے. اور 2005 میں محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے یہ ان کی خواہش کا اظہار کیا اور حکم دیا. اس پہ کام ہوتا رہا اور 2006 میں جا کے یہ کمپلیٹ ہوئی. اور اس طرح سے ابھی اس میں مزید کام باقی ہیں. ابھی آپ نے میرے اس پروگرام سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا یہاں پہ سلائڈ پہ ویب سائٹ کے مختلف پیسز دکھائے گئے, اور اس میں کافی چیزیں جو ہیں ہم نے کوشش کر کے فیڈ کی ہیں اس میں. اور ابھی اس میں مزید کام ہونا ہے اور اس کے 3 مراحل ہیں. ان میں سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ یہ تھا کہ بیسک انفارمیشن پارٹی کے حوالے سے, محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے اتنے صبر و تحمل سے ہمیں سنا آپ نے. اور میں اس کے بعد میری بھی خواہش ہے کہ ہمارے جو معزز مہمان خصوصی جہانگیر بدر وہ آپ کو مزید چیزیں. Thank you for allowing me to be here tonight, and what an honor it is for me to be able to welcome your chief guest to our area. As an outsider in your community, I want to thank you. There is no other community I've ever been involved with that welcomed me and made me feel such a part. I feel a part of your community, and I thank you for that. Assalamu alaikum. Gary, I want to apologize to you, even though I brought my speech in English, but since everybody's going, I hope you don't mind, right? Don't mind. So I'm not going to go for my speech, and I'll go with, मैं अपने heart से जो है बात करूँगा. सबसे पहले तो जो है मैं हमारे जहांगीर बदर साहब को और उनके पूरे ग्रुप को जो है वेलकम करता हूँ ह्यूस्टन में on behalf of Pakistani American Association of Greater Houston. पाकिस्तान एसोसिएशन जो है यहाँ पे माशाल्लाह 35 साल से है और वो जो है एक वाहिद नुमाइंदा जमात है. तो सो फार यहाँ पे जहाँ बात आती है डेमोक्रेसी की, तो आई थिंक वी आर प्रैक्टिसिंग दैट दिस इज द ओनली रियल 35 years old ऑर्गेनाइजेशन जो माशाल्लाह जो है वो बहुत जबरदस्त काम कर रही है यहाँ पे और कॉमन मैन के लिए काफी चीजें कर रही है, स्पेशली जो पाकिस्तान सेंटर के हवाले से जो बात हुई है. और ये सब थैंक्स टू द कम्युनिटी जो बैठे हैं, ये सब उनकी वजह से है कि इन लोगों ने सबने मिल के मेरा साथ दिया. और खुशी इस बात की कि अल्लाह ताला ने मुझे चांस दिया ये करने का. ये लीडर ना होते तो शायद ये प्रोफेसर होते. और जिस तरह हमारे शफकत तनवीर साहब ने कहा कि अगर यहाँ पे हूँ तो उनको यकीनन एक ऑनरेरी डिग्री मिले. ख़वातीन और हज़रात, मैं जहांगीर बदर साहब और आपके दरमियान अब अपनी सूरत में जो दीवार है वो हायल है उसको गिराना चाहूँगा और दावत दूंगा जनाब जहांगीर बदर. Okay, we have several proclamations for our chief guest, and I will request first Mr. Abu Bakr Lili Khan to present the City of Houston proclamation to our chief guest, Mr. Jahangir Badar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात,
اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قابلین، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ آپ سب نے جتنی محبتوں اور عزت کے ساتھ میری یہاں پر پذیرائی کی ہے، سچی بات ہے کہ میرے لیے جو ہے میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ میں اس کی ادائیگی کیسے کروں۔ یہاں پر اکابرین نے بہت ہی اچھے الفاظ میرے لیے استعمال کیے ہیں، خصوصی طور پر جناب غلام محمد بمبے والا، ڈاکٹر اشرف عباسی صاحب نے، تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی میں کیسے رسپانس کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر صرف الفاظ ہی ہوتے تو میں الفاظ کی ادائیگی الفاظوں کے ساتھ کرتا۔ دانیال نے یہاں پہ آ کے جتنی میری قید اور کوڑے گرائے، آپ نے سارے مجھے اتنے ایوارڈ دے کے میرے قید اور کوڑے ختم کر مجھے تو پلے کچھ نہیں رہا، تو اس لیے میرے پاس سچی بات ہے الفاظ ہی نہیں کہ جتنی محبتیں اور جتنی عزت افزائی سے یہاں پر جن محبتوں کے ساتھ، کیونکہ یہ کوئی ایسی میں نے یہ محسوس کیا نا کہ یہ اس کے لیے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ میں نے دل کی گہرائیوں سے اسے محسوس کیا، اور دل کی گہرائیوں سے اس لیے بھی محسوس کیا کہ آپ بھی اسے اسی طرح محسوس کریں گے کہ اگر تو میں گورنمنٹ میں ہوتا، کوئی وزیر، کوئی سفیر، یا میں کوئی اس طرح کی میری کوئی پوزیشن ہوتی تو پھر یہ ایوارڈ مجھے ملتے تو شاید مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آج جب کہ ہم گورنمنٹ سے باہر ہیں، اتنے سالوں سے ہماری قیادتیں جو ہیں یہ الجائل میں دھکے کھا رہی ہیں، ہمارے بچے جیلوں کے بعد جو ہے 8-8 گھنٹے ہمارا انتظار جو ہے کر رہے تھے ان کو کھانا دے دیا جائے، اور جیلر وہاں پہ ہمیں ملنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس دوران میں 2 سال رہا اسی جنرل پرویز مشرف کے دور میں، تو اس وقت آپ کا ان ایوارڈ کو ہمیں دیا جانا جو ہے یہ میرے لیے کتنا باعث عزت اور باعث فخر اور کتنی میری عزت افزائی اور آپ کی محبتیں ہوں گی میرے ساتھ، تو میں اس کو اپنے الفاظ میں کیسے بیان کروں۔ I don't have the words, ladies and gentlemen. Thank you very much. میں آپ کا دل کی گہرائیوں اور میں اس لیے بھی آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اب یہاں پر آج جو ہے اردو ویب سائٹ کی سالگرہ ہے۔ اس سالگرہ کے حوالے سے یہاں پہ جب سید ریاض حسین جو سیکرٹری جنرل ہیں یہاں کے پاکستان پیپلز پارٹی کے، میں ان کو جانتا تو بہت دیر سے ہوں، لیکن ان کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے پارٹی کی چیئرپرسن کو دعوت دی کہ یہاں پر جہانگیر بدر کو بھیجا جائے۔ تو جب یہ مجھے دعوت ملی میں نے ان سے تو یس کر لیا، لیکن چونکہ پارٹی میں محترمہ کی پاکستان واپسی کی تیاریاں بھی شروع ہیں تو میرے لیے یہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ میں اس وقت وہاں پہ کوئی ان سے یہ کہتا کہ میں پاکستان جانے سے پہلے میں کسی اور جگہ اپنا ٹائم جو ہے لگانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ دانیال جو ہیں یہ آئے کینیڈا سے، سیفی آئے وہاں سے ہالینڈ سے، اور بیلجیم سے ایک اور دوست آئے جو یہاں پہ نہیں آ سکے، ملک اجمل، اور عمر میمن جو ہے یہ آلریڈی از ان لنڈن۔ تو انہوں نے جو ہے وہاں پہ جب میٹنگ جاری تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم محترمہ سے ملنا چاہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کو پرمیشن دی جائے۔ چنانچہ محترمہ کو انہوں نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے پھر مجھے اس بات کی اجازت دی کہ میں یہاں آؤں، اور میں جو ہے اس طرح میں 9 سال کے بعد یہاں پہ آیا ہوں اور انتہائی مشکور ہوں۔ میں اردو ویب سائٹ کی جو آج کی جو پہلی سالگرہ ہے اس کے موقع پر ان کے یہی فاؤنڈنگ لیڈرز ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے، سیفی، دانیال، عمر میمن، راشد ربانی، اور یہاں پہ ریاض ہیں جو یہاں کے انچارج ہیں اردو ویب سائٹ کے۔ تو یہ اردو جو ویب سائٹ ہے اس کا جب آغاز ہوا تو محترمہ نے مجھے لکھا، جب انہوں نے محترمہ کو لکھا ویب سائٹ جو ہے بنانے کی اجازت دی جائے
पार्टी में जो है ये बाकायदा सलाह मशवरे और अप्रूवल के साथ ही इस तरह एक्टिविटीज़ की जाती है। दिस इज द एक्सीलेंस ऑफ डिसिप्लिन। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने डिसिप्लिन के एतबार से जो है ये हम जो है इस मोर देन ए पॉलिटिकल पार्टी, वी आर एन इंस्टीट्यूशन। हम एक इंस्टीट्यूशन है अपनी स्ट्रगल के एतबार से और अपने डिसिप्लिन के एतबार से। जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 40 सालों में पाकिस्तान में की है, जितने मुश्किल हालात में की है। एनीहाउ जब ये जो रहनुमाई की जो ईमेल आई तो मोहतरमा ने मुझसे पूछा कि मैंने एक दोस्त से डिस्कस किया है, तो यू सेक्रेटरी टेल मी कि ये एक कनाडा में बैठा है, एक हॉलैंड में बैठा है, ये वेबसाइट मिलकर खोलना चाहते हैं, तो क्या इनको परमिशन दी जाए, ये खोल लेंगे? मैंने कहा कि दी जाए इनको परमिशन। आई नो दैट, मैं सैफी को कई सालों से जानता हूँ, उनसे मेरी जो है ईमेल पे हम एक दूसरे से मिले नहीं थे। लास्ट ईयर जो है मैंने सैफी को जो है मैं मिला हूँ, लेकिन हमारा इंटरेक्शन जो है वो ईमेल के जरिए जो है वो जारी था। इस तरह दानियाल को मैं अभी मिला हूँ, भी वहाँ पे मीटिंग थी यहाँ पे मोहतरमा के, तो ये दानियाल वहाँ पे आए, तो ये पहली दफ़ा मेरी मुलाकात इनसे वहाँ पर हुई, लेकिन मैं इनसे पहले वाक़िफ़ था। ये इंटरनेट का और ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ये कमाल है कि एक दूसरे को मिले बगैर भी जो है कितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो है ये किया जा सकता है। इसीलिए जो है उर्दू वेबसाइट की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इजरा किया, ताकि जिन लोगों से लीडरशिप किसी एतबार से दूर होते हुए नहीं मिल सकती, वो भी अपने पैगाम इस वेबसाइट के जरिए जो है मोहतरमा तक पहुंचा सकते हैं, या ईमेल के जरिए जो है ये भिजवाए जा सकते हैं। जो लीडरशिप है उनके लिए जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लीडरशिप है ये एक तो रहनुमाई करे, क़यादत करे, लीड करे लोगों को। इसके बगैर लीडरशिप की डेफिनेशन जो है अगर क़यादत फराहम ना की जाए हर मौके पे, ख्वाह वो क्राइसिस का हो, ख्वाह वो स्मूथ रनिंग हो, तो फिर लीडरशिप की डेफिनेशन जो है ये पूरी नहीं हो सकती। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द लीडरशिप इज दैट टू कम्युनिकेट, लोगों के साथ जो है कम्युनिकेशन की जाए ताकि उन्हें अवेयरनेस हो, उनको पैगाम दिया जाए। दुनिया की जितनी क़यादतें दुनिया में पैदा हुई हैं आज तक, सब ने जो है लोगों तक पैगाम पहुँचाया है। जितनी मजहबी क़यादतें दुनिया में आई हैं, हमारे नबी पैगम्बर पीस बी अपॉन हिम, जब उन्होंने भी आसमानों का पैगाम देना था तो ये एक पहाड़ी पे खड़े होकर लोगों को पुकारा तक क्या है आके पैगाम दे कि आसमानों पर जो है अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो एक वाहिद जो है वो ज़ात है अल्लाह ताला की। तो इस तरह से जो मैसेजेस हैं ये जब तक कम्युनिकेट ना हो तो मज़हब नहीं फैल सके। तो ये एक बहुत बड़ा जो है इंटरनेट और ये कंप्यूटराइजेशन होने से ये मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी आई है इसने दुनिया में बहुत बड़ी चेंज लेके आया। जैसे डॉक्टर अशरफ अब्बासी साहब ने राइटली यहाँ पे कहा कि एक जो है ये ग्लोबल विलेज जो है ये बन गया है इस पे। तो चुनांचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये पाकिस्तान की पहली सियासी जमात है जिसने ईमेल भी शुरू किया और वेबसाइट भी शुरू की, पहले इंग्लिश में और अब आज पहली सालगिरह में इनके जो फाउंडिंग लीडर्स यहाँ बैठे उनको मालूम देता हूँ कि इन्होंने ये यहाँ पर इजरा किया। उससे पहले जो है पॉलिटिक्स अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वक्त की सियासत को आप स्टडी करें तो उस वक्त आप देखेंगे कि उन्होंने लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए, अपना पैगाम देने के लिए और लोगों को शाउट और अवेयरनेस देने के लिए लाखों मील जो है उन्होंने पहाड़ों पे, मैदानों में, देहातों में जो है इतना समझा जा सकता है। ना तो अकेला मुल्क इससे निपट सकता है, ना तो दो चार मिलके, लेकिन सिर्फ अवाम की मदद के साथ जो है टेररिस्टों को नाकाम बनाया जा सकता है। दिस इज वाई चलिए मैं एक बार फिर एवरीबॉडी आप सबका दिली तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए फिर भी पाक परवरदिगार जब मुझे कभी मौका मिला मैं तो अब 2 दिन के बाद चला जाऊंगा
कल मैं न्यूयॉर्क जाऊँगा 2 दिन के बाद, वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ। जब मौका मिला इंशाल्लाह मेरी इंतहाई ये ख्वाहिश होगी कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अब मैं 9 साल के बाद ना हूँ, अब मैं कोई 9 दिन के बाद ही आ जाए। तो आपने इतनी मोहब्बत और इज्जत दी है, इससे तो चाहता यही है कि हर हफ्ते के बाद यहाँ पे एक बताया बट रहने और जब आप में से कोई भी साहब, कोई बहन भाई पाकिस्तान जब भी आए तो आप समझें पाकिस्तान में आपका एक फैमिली मेंबर, एक आपका भाई जिसको आपने बड़ी इज्जत दी, वो जो है ढेर सारे रिश्ते आपके लिए खड़ा आपका वहाँ पे इंतजार करता होगा। Whatever may be the circumstances in the government, not in the government, never means, लेकिन I will be always with you as you have reciprocated. Inshallah, I will try to do the same in letter and spirit. Thank you very much. हर नारा तेरा नारा, जिए 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 भुट्टो बेनजीर सदा बोले। रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।